Yugadik, are you with me? Yes, sir. Okay, thank you. Now I will start. Acha, Yugadik, in the last few classes I have totally discussed about um, uh, two variable calculus, right? So I have totally discussed about two variable calculus, but in this class I have vast MCQs for you so that you can solve them and get some idea about what kind of problem it may appear in the NPTEL exam. Okay, so I think it will be, today's class will be helpful for you in this direction. So first of all, okay, so first of all, so in first I will start discussing some problems on based upon limit continuity, and then I will discuss problems on differentiation, and finally compile them up. So here is a one question. What is that question? The question is, does knowing that 1 minus x square y square by 3 less than tan inverse xy by xy less than 1 tells you something about this limit xy tends to 0 0 tan inverse xy by xy. So how you can actually can you tell me what you crude idea what you get about it? So you know that tan inverse xy by xy, this is less than 1. On the other hand, 1 minus x square y square by 3 is less than that. So you tell me about the limit of this function. Any idea that you immediately pops up in your mind? Sir, can we use that theorem and over? Yes. So what will be the limiting value of that function? You should use sandwich theorem or squeeze theorem, right? Yes. So what will be the value? Limit xy tends to 0 0 tan inverse xy by xy. Just quickly, you got it quickly. What will be the value of this function? Then the values, limiting values should be, I guess, minus 3 to 1. Yugadik, just simply see xy is tending towards 0. This is your clue. How it can be minus 3 to 1? ट्राई करो, इसे अच्छे से समझ के सॉल्व करने का ट्राई करो. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. जस्ट सीधा सीधा सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम लग जाएगा. मेरे पास तो सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, बट तुम ट्राई करो. Very easy problem, Yugadi. Then can I explain because I am not able to solve it. One is the simple clue. So use put xy tends to 0 in the left hand side as well as in the right hand side. This left hand side you put xy tends to 0, in the right hand side put xy tends to 0. Then both side limit what will be, and then apply the inequality.
in left side I am getting 1. And right side. I am getting 1. So what will be the middle one? Applying sandwich theorem. So using sandwich theorem, what will be the middle one? युगादी। Yes sir, I am solving. तो बीच का सॉल्व करने की क्या है यार, इतना इजी प्रॉब्लम है। देखो मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, कितना इजी प्रॉब्लम है। देखो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 लेस देन tan इनवर्स एक्स वाई बाई एक्स वाई लेस देन 1 एज एक्स वाई टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 टेंस टू 1. Similarly the right hand side also tends to 1 because it is independent of xy. So what matter value you tend xy, it will still remain 1. So both side 1. So the middle one will be 1 simply by squeeze theorem or sandwich theorem. Is it clear? Okay sir. समझ में आया आप? Clear? हाँ सर. Okay. Next problem करो, इसको करो. Does knowing that 2 modulus xy minus x square by y square by 6 less than 4 minus 4 cos square root of xy less than 2 square root of mod of xy tells you anything about this? सेम प्रॉब्लम है, सेम तरीके से होगा। Sir, all 3 are tending to 0. कहाँ all 3 tending to 0 यार? अच्छे से देखो बीच के क्या है, तो आप बोथ साइड में मॉड ऑफ एक्स वाई से डिवाइड कीजिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। अच्छे से देखो, जो आंख कान खोल के मैथ करो, ऐसे कुछ नहीं कि कुछ भी आप बोल दो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर. योगा भी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चलिए तो मुझे बराबर लगता है। Everything tending to true. क्या बताया? Everything tending to true. लिमिटिंग वैल्यू इज 2। Yes. तो 0 क्यों बता दिया था पहले? अच्छे से देखो प्रॉब्लम को पहले। So does knowing that this is our problem, so what you will do, you just divide by mod xy. So
So if you divide by mod xy, you will get 2 mod of xy minus mod of xy by 6 less than 4 minus 4 cos of square root mod of xy divided by mod xy less than 2. So as xy tends to 0 0, 2 minus xy by 6, this is also tends to 0, tends to 2, right? And right hand side is already you got 2, so 2 less than limit of this less than 2, so the middle one will be 2. Is it clear, Yuvadik, now? Yes, sir. Sir, can you explain split theorem, because I am not able to solve problems regarding that. Squeeze theorem is just sandwich theorem. Squeeze theorem means that if your fx is less than gx less than hx and you have limit, that limit extends to say theta fx equal to L and limit extends to theta hx equal to L, then since fx less than gx less than hx and you know fx or hx have same limit, then gx will also have the same limit. Is it clear? Yes, sir. Here this has limit 2, this has limit 2, so this has also limit 2. Okay. Okay, sir. So next problem, solve it. Find the limit if it exists and show that the limit does not exist. So क्या करना है आपको? आपको लिमिट निकालना है ये 3 प्रॉब्लम्स का. करो इसको, फटाफट लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो. करो 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 जल्दी, फटाफट 3 सॉल्व कर लो. Yes, sir. Sir, can you show the evolution of one round of rest to items? Okay. Solution fxy y square by x square plus y square. You take y equal to mx, that is m not equals to 0. So mx tends to 0 as x tends to 0. So what you will get? You will get fxy to be m square by 1 plus m square. So which is dependent on n. Hence the limit is not unique. Hence limit fxy tends to 0 0, fxy does not exist, because we know that if limit exists it is unique. Is it clear? Yes, sir. Now let's solve the next problem. I will give you one hint. The next problem limit will exist. You use polar coordinate transformation.
सर बी का आंसर 0 आ रहा है क्या? यस, 0 आएगा। कैसे किया बताओ? जब पोलर कोऑर्डिनेट डाला एंड देन आर का वैल्यू थीटा का वैल्यू 0 पुट किया तो वो 0 आ गया। थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, आर का वैल्यू 0 पुट करना है। थीटा कुछ भी हो सकता है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वीज थ्योरम लगाया है। एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। सो 0 लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई by x square plus y square is less than or equal to 3y for xy greater than or equal to 0. Now you apply squeeze theorem. If you apply squeeze theorem, limit xy tends to 0 0 fxy equal to 0. Also you can apply Porras coordinate. So in the right numerator you will get 3 r square cos square theta into r sin theta, and here r square cos square theta plus r square sin square theta will give you r square. So in the numerator you will get 3 r cos square theta sin theta, and r as r tends to 0, this will be 0. Is it clear? You got it? Now solve problem 3c. Limit x to z tends to pi 0 1 by 3 e की power y square tan xz. Sir, is the answer root 3? Let's check. Yes, wow. fxy is not equal to e की power y square tan xz as xyz tends to pi 0 1 by 3 fxyz equal to e की power 0 square tan pi by 3 equal to square root of 3. Very good, you are very good. अच्छा चलो, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा पेचीदा है। मैं सारे प्रॉब्लम आपको डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं थोड़ा क्विकली बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके एनपीटीईएल में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे नहीं, बट स्टिल कि आप अगर थोड़ा सीख जाओगे तो अच्छी बात है। तो दैट्स वाई मैंने ये प्रॉब्लम डाले हैं, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करना है। Oh, sorry. So how solve? Let's do it, right? So first problem is fxy equal to x square plus y square. So f 0 0 is 0 square plus 0 square equal to 0. Modulus of fxy minus f 0 0. Modulus of x square plus y square minus 0. So आप इसको ब्रेक करो तो mod of x square plus y square, सिंस दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसमें mod का कुछ सेंस नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यू टेक दिस इज कॉल्ड नॉर्म। दिस नॉर्म मीन्स यूक्लिडियन नॉर्म। हियर यूक्लिडियन नॉर्म मीन्स सिंपली डिस्टेंस। नॉर्म ऑफ एक्स वाई माइनस 0 0 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड 0 0, सो दैट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. नाउ इफ यू कंसीडर दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बी लेस देन डेल्टा, एंड here you have chosen arbitrarily epsilon. Now you got set delta equal to square root of epsilon. Now you choose delta such that the square root of x square plus y square is less than delta, which implies that is square root of epsilon. So what you will get? You will get x square plus y square less than epsilon. So now the definition of continuity is satisfied. So we get, for given epsilon greater than 0, there exists a delta equal to square root of epsilon such that
0 less than or equal to the distance between xy and 0 0, it is less than delta. This implies modulus of fxy minus f00, that is simply this x square plus y square, this is less than epsilon. So this is called epsilon delta definition of continuity, which is satisfied here. So that means this x square plus y square is continuous at the point 0 comma 0. Is it clear, Yuvadit? Yes, sir. Okay. ये प्रॉब्लम थोड़ा पेचीदा है, इसको थोड़ा आराम से करना होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4b एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं ये पूरा ट्यूट आज अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके सर। कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं डाल दूंगा। सो नाउ mod of fxy minus mod f00, this is less than mod of x plus y by x square plus 1. Now you note that x square plus 1 will be always greater than or equal to 1. That means 1 by x square plus 1 is less than or equal to 1. So fxy minus f00, this is less than or equal to mod of x plus y, which is less than or equal to, because this is less than or equal to 1, so mod of x plus y by x square plus 1 will be less than or equal to mod of x plus y, right? बिकॉज आपका नीचे का जो ये है ये तो लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया ना। सो देन मॉड ऑफ fxy minus f00 is less than or equal to mod x plus mod y. Now distance between xy to 0 0, you assume it to be less than delta. That means your x square plus y square is less than delta square. That means your x square is less than delta square as well as y square less than delta square. This will give you mod x less than delta as well as mod y less than delta. आप जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा mod x plus mod y लेस देन 2 डेल्टा। नाउ आप एक काम करो, एप्सिलॉन ले लो 2 डेल्टा, दैट मींस यू टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। सो देन फ्रॉम दिस 2 व्हाट यू विल गेट mod x plus mod y टू बी लेस देन 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज आपने 2 डेल्टा को एप्सिलॉन ले लिया तो ये आपका बन गया एप्सिलॉन। तो mod x plus mod y आपका बन गया लेस देन एप्सिलॉन। तो जैसे ही mod x plus mod y आपने लेस देन एप्सिलॉन बनाया तो आप व्हाट यू विल गेट ब्रैकेट ऑफ xy minus 0 0, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन xy to 0 0, दिस इज लेस देन डेल्टा। दैट मींस दिस इंप्लाइज mod of fxy minus f00, this is less than mod x plus mod y less than epsilon. So now you have proven this function x plus y by x square plus 1 is continuous using the definition, ठीक है। Shahu, is it clear to you this problem? Yes, sir. Sumitra, is it clear to you also? Yes, sir. आप समझ गए हो ना कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? We are simply using epsilon delta definition. ओके इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम शिफ्ट करता हूं। ओके, अब इसके बाद है एफ एक्स वाई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर वाई। इसको थोड़ा ट्राई करोगे एप्सिलॉन डेल्टा करके करने के लिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर वाई। थोड़ा ट्राई करो 2 मिनट, ठीक है। थोड़ा ट्राई करो, कुछ पेचीदा इधर उधर करके, कुछ भी करके। f of 0 0 पे ये 0 आ रहा है।
हाँ, तो उसको आपको प्रूफ करना होगा ना कंटिन्यूटी। आप ऐसे x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो करके नहीं कर सकते हो, इस पे आपको डेफिनेशन यूज करना होगा एप्सिलॉन डेल्टा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? तो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो आ रहा है मॉड ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर वाई। नाउ tan तो मॉड के अंदर स्क्वायर है दोनों, तो दैट यू आर गेटिंग tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर वाई। नाउ आपको प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स for any arbitrary epsilon greater than 0, this tan square x plus tan square y, this is less than epsilon whenever there exists a delta such that for any epsilon such that tan square x plus tan square y less than or equal to epsilon, you have a delta such that 0 less than x square plus y square less than delta will imply tan square x plus tan square x y less than epsilon। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो। तो डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? अभी तक मैंने अभी भी डिड आई टेक एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ये आर्बिट्री के लिए होता है ना। आप शायद क्लास वीडियोस नहीं देख रहे हो जितेंद्र सर के। तो वो वीक 2 का थोड़ा सा बात है, वीक 2 और तो देखो यार, ऐसे कैसे होगा? आप मैं कब से इसी में घिसा जा रहा हूँ एक ही जगह पे, घर में भी तो कुछ पढ़ना होता है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, पहले मैं इस सॉल्यूशन को आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो रहा है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट सी, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट एवर आई एम डूइंग हियर, जस्ट सिंपली ऑब्जर्व। It is 6. I will ask you 6 8. I am giving you 2 minutes. Okay, just आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या हो रहा है।
देखो fxy equal to tan square x plus tan square y. So f00 is tan square 0 plus tan square 0 is again 0. So mod of fxy minus f00 is tan square x plus tan square y. So this is tan square x plus tan square y is sin square x by cos square x plus sin square y by cos square y. So you can write cos square x as 1 minus sin square x, and this is as 1 minus sin square y. Now we will use a simple very well known result, that is sin square x is less than x square, and using sin square x less than x square into we can get tan square x plus tan square y is less than or equal to x square by 1 minus x square plus y square by 1 minus y square. Now mod of x, let mod of norm of xy minus 0 0, that means the distance square x square plus y square, the distance between this ordered pair xy and ordered pair 0 0 is less than delta square. So x square less than delta square, y square less than delta square. So solution of 4c continued. So using 4 in 3, so this using 4 in 3 you will get tan square x plus tan square y is less than or equal to x square by 1 minus x square plus y square by 1 minus y square. This is less than or equal to delta square by 1 minus delta square प्लस अगेन डेल्टा स्क्वायर बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. आप ऐड कर दो तो ये बन जाता है 2 डेल्टा स्क्वायर बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. अभी आप ले लो डेल्टा 1 एज डेल्टा स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट, वी गेट tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y is less than or equal to 2 delta 1 by 1 minus delta 1. Now for any given epsilon greater than 0, you consider this 2 delta 1 by 1 minus delta 1 to be epsilon. That means your delta 1 is epsilon by 2 plus epsilon, and then delta by dilation delta square equal to delta 1. That means delta equal to square root of epsilon by 2 plus epsilon, which means your modulus of fxy minus f00, this is tan square x plus tan square y, this is less than or equal to epsilon for any delta satisfying mod xy less than 0 0, this less than delta. Hence you get fxy is continuous at 0 0. So what is the main point? The main point is you need to prove that the distance between the modulus distance between fxy and f00, this is just a real number. So that means a number minus a number and their modulus value should be less than epsilon, and for any this kind of epsilon you should get a delta. That delta satisfies this relation, norm of xy minus 0 0 is less than delta, and this will give you, this is the proof that by definition you are trying to prove that yes, fxy is continuous at 0 0. So this is our proof of our problem. Is it clear? You just read the note, I will upload it today. You just read the note. If you still get stuck, I will discuss in the next class. Okay? Is it clear, Sumitra? Is it clear? Yes, sir. Okay. So now come to the next problem. Where the function fxy equal to x square minus y square by x square plus y square is continuous. देखो यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से देखो, पढ़ के समझो कि whether you are able to digest this. ये बस एक मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो जस्ट 2 लाइन पे मैंने लिख दिया है इसको. आप इसको थोड़ा अच्छे से देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. Here we use polynomial function is always continuous and denominator is not equal to 0. That's why. Yes, very good. So but denominator अगर 0 आ जाएगा तब क्या होगा? Discontinuous at that point. Yes. Denominator is equal to 0. Yes. So for the function of type pxy by qxy, where pxy and qxy are continuous, for such functions we call them rational functions. For such functions are continuous on all the points except at all points where qxy is not equals to 0. In our case, qxy equal to x square plus y square. So qxy not equals to 0 whenever xy is not equals to 0 0. So therefore this function is continuous on all the points in R2 except 0 0. Is it clear, Yugadik? Yes, sir. Okay. Now let's move to the next problem.
ओके, बट अब हमें 0 0 पे चेक करना होगा, ठीक है। सो आप 0 0 पे चेक कर लीजिए। सो फॉर द पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 0 0 यू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू mx, then use fxy equal to x square minus m square x square by x square plus m square x square, so you will get it 1 minus m square by 1 plus m square. So you see that this fxy, the limiting value will depend upon m. Now we know that if limit exists, it should be unique, so therefore this limit does not exist. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next move to the this problem. Determine the set of points at which function is continuous. पहला प्रॉब्लम तो जस्ट पहले वाला ही प्रॉब्लम है, लास्ट वाला प्रॉब्लम। लास्ट वाला प्रॉब्लम में क्या आया था, ये जो ए फंक्शन है ये हर किसी पॉइंट में इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 0,0। क्यों? क्योंकि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट लिमिटिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एम। इज इट क्लियर? जैसा हमने यहाँ पे दिखा दिया ना, लिमिट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एम, और आपका फंक्शन का वैल्यू है 0 और यहाँ पे आपका डिपेंड कर रहा है एम के ऊपर। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट xy इक्वल टू 0, xy इक्वल टू 0,0। क्लियर मित्र? पहला प्रॉब्लम बस उसी का रिपीटेशन है। अब आप दूसरा वाला को करो, एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0,0 and if this is equal to 0 if xy not equals to 0. The second function is also continuous. Continuous everywhere except the 0 0 everywhere. नहीं 0 0 में भी है। हाँ सर, वो हम लोगों ने इससे पहले किया था ना, वो लिमिट दिखाया था। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। सेम प्रॉब्लम है, थैंक यू। बस आप पोलर लगा दो हो जाएगा, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी एक्स वाई बाई क्यू एक्स वाई, तो सारे पॉइंट में तो आपको सारे पॉइंट को आपको पता चल गया कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट वेयर क्यू एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ क्यू एक्स वाई अगर 0 हो गया तो 0 0 पॉइंट ही बचा, तो 0 0 पॉइंट के लिए आप पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ले लो और हो जाएगा आपका आंसर। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा खत्म, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पूरा R2 प्लेन में ये कॉन्टिन्यूअस है। और ये तो वही पोलर का प्रूफ यहाँ पे दे दिया मैंने। युगादिक देख लिया ना पोलर का कैसे करते हैं। हाँ, लिमिट r टेंड्स टू 0 3r cos स्क्वायर थीटा sin थीटा 0 f 0 0 एंड f x y इज कंटीन्यूअस एट 0 0। वेरी गुड। अब इसको करो, प्रूव दैट देयर इज अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट if x square plus y square is less than delta square then x modulus of x square plus y square plus 3xy plus 180xy की पावर 5 is less than 1 by 10,000। Sir, give me some hints to solve this type of question. This function fxy x square plus y square plus 3xy plus 180xy की power 5 it is a polynomial function, so it is a continuous function, right? And what is f 0,0? f 0,0 is 0,
Now modulus of fxy minus f00, this will be less than epsilon for any arbitrary epsilon. Then you will get a delta dependent upon epsilon such that this satisfied. Now you just choose epsilon equal to this, your proof is complete. See, let fxy equal to x square plus y square plus 3xy plus 180 xy की power 5. Now your f00 is equal to 0. Now fxy is just a polynomial function, so it is continuous. You set epsilon equal to 1 by 10,000. Therefore, as this function is continuous, hence for this epsilon equal to 1 by 10,000, there exists a delta greater than 0 such that 0 less than norm of xy minus 00 less than delta. This will imply mod of fxy minus f00 is less than 1 by 10,000. So that implies square root of x square plus y square less than delta will imply this. तो 0 आपका चला गया, तो x square plus y square less than delta square will imply x square plus y square plus 3xy 180 xy की power 5 is less than 1 by 10,000. Such thus there exists a delta greater than 0 such that if x square plus y square is less than delta square, then x square plus y square plus 3xy plus 180 xy की power 5 is less than 1 by 10,000. जस्ट कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से आ गया, क्लियर हुआ? यस सर. ओके. देखो अब इसको करो. Can sin xy by x plus y be made continuous by suitably defining it at 0,0? इसको अच्छे से सोचो, मैं तुम्हें 4 मिनट टाइम दे रहा हूँ. इसका मतलब है कि आपको f00 ऐसे डिफाइन करना है कि आपका sin xy by x plus y कॉन्टिन्यूअस बन जाए. ठीक है? सर लिमिट लेने से तो 1 आता है. हाँ, आप अच्छे से सोचो कि क्या 1 डिफाइन करने में ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. यू नीड टू प्रूव. अच्छे से सोचो. 1 इज ए गुड गेस. जीरो को जो कंटिन्यूस आ रहा है. सुमित्रा कुछ आइडिया आ रहा है? 1-2 मिनट और टाइम लो. देखो कि sin x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इसको अगर 1 डिफाइन करोगे f00 पे तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? बस थिंक अबाउट इट. अगर मैं 0,0 इसका वैल्यू फंक्शनल वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो होता है.
जीरो जीरो मतलब 0 0 जीरो जीरो पॉइंट पे जीरो जीरो कैसे वैल्यू हो जाएगा? आपको साइन एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई, अगर आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह जीरो जीरो दे दोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको इस फंक्शन को ऐसे आपको डिफाइन करना है, एफ एक्स वाई एफ जीरो जीरो को जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, जैसे यहाँ पे हमने एफ एक्स वाई और एफ जीरो जीरो डिफाइन किया था वैसे। देखो मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। एट फर्स्ट लुक इट लुक्स लाइक बाय डिफाइनिंग एफ जीरो जीरो इक्वल टू 1 you can make it continuous as we knew very well limit t tends to 0 sin t by t equal to 1, but that is not the case. If possible let define f00 equal to m where m is any real number. आप कोई भी रियल नंबर m मान लो। Now here the main point is not you have problem in the 0, 0 part. You have problem on the whole line where x plus y equal to 0. That means x plus y equal to 0. That means you have problem on each of the points x minus x, like this kind of point minus when x, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? जब भी डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है x plus y equal to 0, that means y equal to minus x, सारे ऐसे पॉइंट्स पे you have problem. So even after defining f00 equal to m, limit xy tends to 0 0 sin x plus y by x plus y does not exist, because when we try to take limit by the path y equal to mx for m equal to minus 1, this limit does not exist, because आपने प्रूफ कर लिया है कि ये लाइन के ऊपर आपका लिमिट प्रॉब्लम हो रखा है बस। हाँ, लेकिन अगर आप पूरी इस लाइन पे, बट यस इफ वी डिफाइन sin x plus y by x plus y on the whole line as 1, then we can make this function sin x plus y by x plus y to be continuous. Is it clear now, Sumitra? You need to define on the entire line, not on just the point, because even if you define on the 0, 0 point, you have still problem in these points. समझे? तो आप अगर उस पाथ पे इसका कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए जाओगे तो उसमें तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन यू कैन नॉट प्रूव कॉन्टिन्यूअस देयर। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिफाइन इन द एंटायर लाइन। ये थोड़ा पेचीदा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है वो समझ में आया ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नीड टू प्रूव डिफाइन ऑन द एंटायर लाइन, नॉट ऑन द पॉइंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So then I have just maybe okay. So this slide is over. I will upload this slide. Okay. Next I will move to some other interesting problems. Okay. Using the limit definition of partial derivatives, find del f del x and del f del y at point 1, 2 for fxy equal to 1 minus x plus y minus 3x square y. तो लिमिट डेफिनेशन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सुमित्रा आप तो उस क्लास में थे, आपको पता है। सो आप x की तरफ x की डेरिवेटिव ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग इंक्रीमेंट इन द x डायरेक्शन। सो आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 2 माइनस f12 बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आप 1 प्लस h और 2 से रिप्लेस कर दो fxy में, तो यू विल गेट limit h tends to 0 minus 6h square minus 13h by h. So that means limit h tends to 0 minus 6h minus 13. If you put h equal to 0, you will get minus 13. और similarly fy1, 2 निकालो, चलो निकालो एक साथ, करो प्रॉब्लम निकालो। So f del f del y at the point 1, 2 क्या आएगा? आप सेम करना होगा, आपको इंक्रीमेंट देना होगा y डायरेक्शन पे। That means you need to put y plus k, sorry 2 plus k. That means del f del y at the point 1, 2 is f of 1 limit k tends to 0 f of 1, 2 plus k minus f12 divided by k। इसको आपका लिमिट निकालना है। करो जल्दी से करो। सिमिलरली ऊपर तो उसके लिए मैंने बता दिया। क्या माइनस 2 है क्या? क्या माइनस 2 आ रहा है
आपने तो सीधा यहाँ से डेल एफ डेल वाई निकाल दिया, आपने डेफिनेशन लगाया ही नहीं, आपने सिर्फ डेल एफ डेल वाई इधर से निकाल दिया। आई एम डैम श्योर, है ना? सर वो वेरीफाई कर दो। युगाधिक समझ में आ रहा है ना? मैं भी उस क्लास में था कभी, ऐसे मत करो। तो तुम्हें प्रॉब्लम इसीलिए दिया ना ताकि आप डेफिनेशन आपको याद रहे, नहीं तो मैं सीधे इसको देने का ही क्या मतलब है? ओके सर, करता हूँ। करो। निकाला, चलो कोई बात नहीं। एफ वाई 1,2 आपको बस, सॉरी यहाँ पे मैंने सेम नोटेशन एच यूज कर दिया, आप के यूज करना। इफ ऑफ 1 2 प्लस के माइनस एफ 1 2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो आपका आ गया -2h -4 माइनस ऑफ -4, दैट मीन्स यू विल गेट -2h बाई एच, तो आंसर विल बी -2। ओके, आप निकालो फाइंड, अब इसको सिंपली तरीके से निकाल लो। फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। मतलब यहाँ पे एफ रो थीटा फाई आपका है, रो साइन फाई, तो आपको रो फाई और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। निकालो डेरिवेटिव फटाफट। मतलब रो के लिए अलग, फाई के लिए अलग, ऐसे कर दूंगा। रो के लिए अलग, फाई के लिए अलग, सही। Del F by del rho is sin phi, del F by del phi is rho cos phi, and with respect to theta is 0. यस सर, मेरा भी यही है। अब एफ एक्स वाई के लिए निकालो।
सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity xy की पावर n where mod of xy is less than 1. करो इसे सॉल्व. सर ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डाल के करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, करो, लगा दो. सर आप ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं. तो ये तो इजी आपका हो गया. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा दो ना, इसने इन्होंने बोल दिया है हमारे सुमित्रा ने. ये है if x y is a geometric series of the type sigma n equals to 0 to r की पावर n 1 by 1 minus r for mod r less than 1. So here r equal to xy, so you will ultimately get 1 by 1 minus xy. अब आप del f del x del y निकाल दो, you will get y by 1 minus xy whole square and x by 1 minus xy whole square. हो गया. Okay, next problem. Find the value of del z del x at the point 1 1 1 if the equation is xy plus z cube x minus 2yz equal to 0 holds, where z defines as a function of the independent variable x and y and the partial derivatives exist. करो इसे कहते हैं implicit derivative निकालना. करो. यार इसका आंसर 0 आना चाहिए ना, बिकॉज z जो है वो x1 नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं. नहीं इतना इजी नहीं है बाबू. z कहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट है? where z defines as a function of the independent variables x and y. z x y के ऊपर डिपेंडेंट है. निकालो अब. देख रहे हो कितने सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, हैं? ये सर दिखता है. इसलिए तो क्लासेस जरूरी है अटेंड करना. ट्राई करो, सॉल्व करो. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था.
सुमित्रा तुम तो क्लास में थे जब मैंने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव पढ़ाया था, क्यों नहीं कर पा रहे हो फिर से? ट्राई करो, ऐसे नहीं चलेगा, 2 मिनट ट्राई करो। नहीं कर पा रहे हो यार इतना इजी प्रॉब्लम को? छी छी छी। ट्राई कर रही है तो ट्राई कर क्या, इसको बस सीधा सीधा डेरिवेटिव कर दो ना। y होगा इंडिपेंडेंट x से, तो ये पहले x y का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा सिर्फ y, बिकॉज आप x का डेरिवेटिव आ जाएगा ना, सिर्फ डेल डेल एक्स वाई करोगे तो सिर्फ आएगा y प्लस जेड क्यूब एक्स, तो पहले x का डेरिवेटिव हो गया, आ गया जेड क्यूब प्लस जेड एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या आएगा 3x जेड स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स। देखो consider the given implicit equation xy plus z cube x minus 2yz equal to 0. Differentiate the above equation with respect to x. Del del x of xy plus del del x of z cube x plus del del x of minus 2yz equal to del del x of 0. So then you get y plus z cube plus 3z square x del z del x minus 2y del z del x equal to 0. अब यहाँ से आप del z del x को निकाल लो। अब आपके लिए x y z सबका वैल्यू दिया गया है 1 1 1, बस पुट कर दो del z del x आ जाएगा। करो करो डेल जेड एक्स निकालो। सर इसका आंसर 3 है क्या? So -2. तो -2 आया।
हाँ सर -2 आ रहा है। सुमित्रा का भी -2 आया है। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। हाँ, सो डेल जेड डेल एक्स इंटू 3z² x माइनस 2y यू विल गेट -y माइनस जेड क्यूब। आप सबका वैल्यू 1 1 1 पुट कर दो तो डेल जेड डेल एक्स आ गया -2। तो ऐसे इसे कहते हैं इम्प्लिसिट तरीके से डेरिवेटिव निकालना। ऐसे प्रॉब्लम अब कर लोगे ना आप लोग, आगे कर लोगे ना, ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो। हाँ सर। ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो। फाइंड डेल एक्स डेल यू एंड डेल वाई डेल वी इफ द इक्वेशन u equal to x square minus y square and v equal to x square minus y, x and y defines as function of the independent variables u comma v and the partial derivatives exist. Then आपको क्या करना है, let a is equal to x square plus y square आपको निकालना है डेल s डेल u। तो पहले इधर से आपको डेल u डेल x, सॉरी u के लिए तो आपका आ गया, आप कर लोगे डेल यू डेल एक्स, लेकिन आपको निकालना है डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल वी। करो अच्छे से, सोचो कैसे करना है। इसको हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, ठीक है। पहले करो तो देखते हैं कर पाओगे इस प्रॉब्लम को। चलो डेल एक्स डेल यू अपना इक्वल टू 1/2x है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। चलो मैं वो समझा देता हूँ। So consider the given equations u equal to x square minus y square and v equal to x square minus y, and then differentiate each equation implicitly with respect to u. So you get 1 equal to 2x del x del u minus 2y del y del u, and 0 if डेल भी डेल यू आपका हो जाएगा 0, इधर से आपका आ जाएगा 2x डेल एक्स डेल यू माइनस डेल वाई डेल यू। तो इस दो इक्वेशन से आपको डेल एक्स डेल यू और डेल वाई डेल यू निकालना है। ये दो इक्वेशन से डेल एक्स डेल यू और डेल वाई डेल यू निकालो। यू और भी इंडिपेंडेंट बोल दिया है हमने, तो अब ये यहाँ से आप सॉरी यहाँ के इसको भी आप u से डेरिवेटिव कर निकालो, इसको भी आप u से डेरिवेटिव निकालो। अब डेल भी डेल यू आएगा 0, तो आपका आ जाएगा यहाँ से। अब जब सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा डेल वाई डेल यू इक्वल टू 1/1 माइनस 2y। अब इस 1/1 माइनस 2y को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2x डेल एक्स डेल यू इक्वल टू 1/1 माइनस 2y इक्वल टू 0। सो डेल एक्स डेल यू आपका आ जाएगा 1/2x इंटू 1 माइनस 2y। इन ए सिमिलर वे आप डेल वाई डेल भी निकाल सकते हो। कैसे करोगे, आप दोनों साइड को डेल 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 भी करोगे। अब जैसे ही दो साइड को डेल डेल भी करोगे यहाँ से आपको 0 आ जाएगा। सो 2x डेल एक्स डेल भी माइनस 2y डेल वाई डेल भी आपका आ जाएगा 1 इक्वल टू 2x डेल एक्स डेल भी माइनस डेल वाई डेल भी। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल एक्स डेल यू इक्वल टू 1/2x इंटू 1 माइनस 2y, डेल वाई डेल भी इक्वल टू 1/2y माइनस 2 1। अब आपने s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब चेन रूल लगा दो, डेल एस डेल यू इक्वल टू डेल एस डेल एक्स डेल यू प्लस डेल एस डेल वाई डेल यू। तो आपने ऑलरेडी डेल एक्स डेल यू और डेल वाई डेल यू निकाल के रखा है। सो आपका आ जाएगा, इट इज क्लियर दैट डेल एस डेल एक्स इक्वल टू 2x एंड डेल एस डेल वाई इक्वल टू 2y। तो यहाँ से आपका हमने डेल एक्स डेल यू निकाला है, डेल एक्स डेल यू निकाला है, और इधर से हमने डेल वाई डेल यू भी निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेल वाई डेल यू कैसे निकलोगे, डेल वाई डेल यू हमने निकाला है 1/1 माइनस 2y, बस उसको पुट करना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल एस डेल यू इक्वल टू 2x इंटू 1/2x इंटू 1 माइनस 2y प्लस 2y/1 माइनस 2y। आप इसको ऐड कर दो तो आपका मिल जाएगा डेल एस डेल यू इक्वल टू 1 प्लस 2y/1 माइनस 2y। मैं अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ना। मैं इसको टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर रहा हूँ। अब आप इस प्रॉब्लम को करो, express del w del t as a function of t both by using the chain rule
and by expressing w in terms of t before differentiating, where w equal to ln x square plus y square plus z square, x equal to cos t sin t and z equal to 4 square root of t. तो पहले आपको डेल डब्ल्यू डेल टी को चेन रूल के थ्रू अप्लाई निकालना है, फिर उसके बाद सीधा सीधा एक्स वाई जेड का मान पुट करके वैल्यू पुट करके निकालना है और दिखाना है कि दोनों में आपको इक्वल मिल रहा है। आप कोई भी प्रोसेस लगा के मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है डेल डब्ल्यू डेल टी। जल्दी करो सुमित्रा, जल्दी करो। हो रहा है, ट्राई कर रहे हो? यस सर, हो रहा है। ठीक है, आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। मैं नेक्स्ट क्लास में इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाऊंगा, उसमें जरूर प्रेजेंट होना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ऑन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। माइनस 2 sin t प्लस cos t प्लस 8/2 रूट t और 116t जो है वो w की वैल्यू। देखो कैसे क्या हो रहा है। पहले यू कंसीडर द फंक्शन w इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यू नीड टू फाइंड डेल w डेल t यूजिंग चेन रूल। तो पहले आप क्लियर जो डेल w डेल x क्या आएगा, 2x बाई दिस, 2y बाई दिस, 2z बाई दिस। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन चेन रूल। डेल w डेल t आपका बन गया डेल w डेल x डेल t प्लस डेल w डेल y डेल t प्लस डेल w डेल z डेल t। अब आपका डेल x डेल t क्या है, cos t का डेरिवेटिव। डेल t ऑफ y क्या है, डेल t ऑफ sin t। z क्या है, 4 स्क्वायर रूट t। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट t का डेरिवेटिव डेल t। अब इसको सॉल्यूशन कंटिन्यू करना होगा। तो डेल w डेल t आपका बन गया माइनस 2x sin t बाई एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, 2y cos t बाई सेम, 2z बाई दिस इंटू 2 बाई स्क्वायर रूट t। हम यहाँ पे डेरिवेटिव करना है ना, तो स्क्वायर रूट t का आ जाएगा हाफ, आ जाएगा हाफ बाई स्क्वायर रूट t। तो हाफ और 4 कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। अब डेल ऑफ डेल टी आपका आ गया माइनस 2x sin t प्लस 2y cos t 4z 1 बाई स्क्वायर रूट t। ठीक है, अब आपको x और y का वैल्यू वहाँ पे पुट करना है, x y और z का। जैसे आप x y z का वैल्यू पुट करोगे आपका ये बन जाएगा माइनस 2 cos t sin t प्लस 2 sin t cos t प्लस 4 स्क्वायर रूट t इंटू 1 बाई 1 रूट t। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे देखो ये आ गया माइनस 2 cos sin t प्लस 2 sin t cos t, तो ये वैनिश हो जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई रूट टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा सिर्फ 16। यहाँ से भी cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आपको आ जाएगा 1, यहाँ से 4 स्क्वायर रूट टी होल स्क्वायर आ जाएगा 16t। तो डेल डब्ल्यू डेल टी आपका बन जाएगा 16 बाई 1 प्लस 16t बन गया। अब देखो नाउ फर्स्ट एक्सप्रेस w इन टर्म्स ऑफ t एंड देन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपका w बन गया ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ w इक्वल टू ln cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस, तो आपका बन गया 16t। अब dw dt कर दो,
तो 16/1 + 16t आपका बन गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सुमित्रा, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मेरे पास, इसे ये स्लाइड मुझे ढूंढना पड़ता है एक एक प्रॉब्लम। ये मैंने, चलो तो ये तो अच्छी बात है कि मैंने लास्ट ईयर बना के रखा था कुछ स्लाइड्स, तो मैंने कैलकुलस का टीए लिया था लास्ट ईयर, इसी वजह से मेरे पास इतने अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। 2-4 बार आप क्लास लेते हो तो आपके पास वो क्वेश्चन बैंक बन जाता है ना क्वेश्चंस का। चलो अब इसको ट्राई करो। एक्सप्रेस del z del u and del z del v as a function of u and v both by using the chain rule and by expressing z in terms of u comma v before differentiating. You have z equal to 4 e की power x ln y and here x is ln u cos v and y equal to u sin v। इसको तो करना चाहिए यार, इसको करो। मैं आपको 4 मिनट टाइम देता हूँ, ठीक है? मैं आपको आपके पूछता हूँ। हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? So del z by del x is 4 cos v log u sin v plus u cos v. अच्छा। 4 cos v. चलो कोई बात नहीं, कर तो पाए ना आपने, ठीक है चलो। By using chain rule. अच्छा ठीक है, मैं वो दिखा लेता हूँ कैसे क्या है। अरे बाप रे सॉल्यूशन देख के तो मैं खुद घबरा रहा हूँ यार। चलो कोई बात नहीं। 4 cos v कॉमन लेते हैं तो 4 cos v होल इनटू log u sin v plus 1। ये आ गया ना 4 cos v। हाँ 4 cos v कॉमन लेंगे तो ln u sin v plus 1, राइट? हुआ सुमित्रा? चलो consider the function z equal to this del z del u del z del v. You need to find out. This is last problem, okay? This is today's last problem.
So consider the function z equal to 4 e की power x ln y and find del z del u and del z del v using chain rule. It is clear del z del x equal to 4 e की power x ln y and del z del y equal to 4 e की power x by y. Now substitute these values using chain rule. So del z del u equal to 4 e की power x ln y del u of ln u cos v 4 e की power x by y del u of u sin v. अब आप इस पे निकालोगे तो आपका आ जाएगा del z del u equal to 4 e की power x ln y 1 by u प्लस 4 e की पावर x by y sin v. अब आपको क्या आएगा, u x एंड v को आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से 4 e की पावर ln u cos v ln sin v इंटू 1 by u, यहाँ पे भी ln u cos v by ln u sin v इंटू sin v, तो sin v आपका कट आउट हो जाएगा. तो ये आपका बन जाएगा 4 cos v और इधर से आपका बन जाएगा 4 cos v ln u sin v. तो आप 4 cos v कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा ln u sin v प्लस 1. एम आई करेक्ट सुमित्रा? यस सर. ओके, अब आप डेल जेड डेल भी निकालो, क्विकली डेल जेड डेल भी निकालो. युगादि थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज रात को ही नोट डाल दूंगा. ठीक है, आप थोड़ा नोट को देख के हर क्वेश्चन को ना खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करना. हाँ सर. और इतने आसान प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्योंकि ये प्रॉब्लम सारे मैंने बनाया है इसीलिए स्टैंडर्ड है. बता सकते हो क्या वो फंक्शन कौन से थे? मुझे सुनाई नहीं दिया, अधिक थोड़ा एक बार अच्छे से और एक बार बोलो. सर क्वेश्चन मुझे वापस देखना है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये लो, डेल जेड डेल यू तो हमने डिस्कस कर दिया, अभी आप डेल जेड डेल भी निकालो. सुमित्रा हुआ डेल जेड डेल भी? जल्दी करो, सेम चेन रूल लगाना है बस. सर आंसर आया है लेकिन गलत लग गया. ठीक है, फिर मत बोलो. चलो कोई बात नहीं, सुमित्रा को भी टाइम लग रहा है, मैं बोल देता हूँ, कर देता हूँ. देखो डेल जेड डेल भी. हाँ बताओ. माइनस को साइन भी तो लॉन ऑफ यू साइन भी. माइनस तो साइन 4 साइन भी इनटू लॉन यू साइन भी, लॉन ऑफ यू साइन भी प्लस 4 यू cos स्क्वायर भी बाई साइन भी. अच्छा ठीक है, चलो करते हैं. हाँ, टू फाइंड डेल जेड डेल बी डिफरेंशियल इक्वेशन बाई 9 विथ रेस्पेक्ट टू v. तो जेड आपका आ गया इधर, सॉरी मैं चेंज हो गया था.
तो इन सिमिलर वे फाइंड डेल जेड डेल बी। डेल जेड डेल बी आपका आ गया अपने यहाँ पे आपने 100 चेन रूल लगाया तो आपके पास अल्टीमेटली मिला डेल जेड डेल बी इक्वल टू माइनस 4 e की पावर x ln y ln y बाई साइन बी बाई कॉस बी प्लस 4 e की पावर x बाई y u cos b। नाउ सब्स्टिट्यूट x u v एंड y u v। अब आप x y का वैल्यू लगा दो। x है ln u cos b एंड y इज u sin b। जैसे ही आपने पुट किया आपका बन गया डेल जेड डेल बी इक्वल टू माइनस 4 u sin b ln u sin b प्लस 4u cos b स्क्वायर बाई साइन b। ठीक है, यही आया है ना सुमित्रा? यस सर। ठीक है, तो आप इसके बाद तो आपको बस पुट करना है। यू फर्स्ट एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ u एंड v, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो आपका z बन जाता है 4 e की पावर x ln y। z आपका हो जाता है फिर z इक्वल टू 4 ln u cos b ln u sin b। z आपका फिर बनता है 4u cos b ln u sin b। अब आप डेल z डेल u निकालो क्योंकि z आपने क्लियरली अपने u v का फंक्शन बना दिया है। डेल z डेल u बन गया, इट मेक्स योर डेल z डेल u टू बी 4 cos b u डेल डेल u ln u sin b प्लस ln u sin b डेल u। तो डेल n u तो आपको 1 ही देगा, तो यहाँ से आपका आ गया डेल z डेल u 4 cos b 1 प्लस ln u sin b। वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इट एंड सिमिलरली आप जैसे ही डेल z डेल v करोगे तो आपका बन जाएगा सेम प्रोसीड्यूर से आपको डेल डेल v करना है। तो ये आपका बन जाएगा 4u cos b स्क्वायर बाई साइन b माइनस साइन b ln u sin b, जो कि हमने पहले भी निकाल के रखा है। हमने यहाँ पे पास 4u कॉमन नहीं लिया है। यू कैन ऑल्सो टेक 4u कॉमन, यू विल गेट दिस। 4u कॉमन ले लो तो आपको बन जाएगा cos b स्क्वायर बाई साइन b और इधर से आपका आ जाएगा माइनस साइन b इंटू ln u sin b। हो गया। ओके, सिमिलर प्रॉब्लम 7 में है। तो अभी तक जितना मैंने जो भी अब तक डिस्कस किया ये पूरा समझ में आया है ना? यस सर। ओके, तो आज यहाँ पे स्टॉप करें, क्या कहते हो? स्टॉप करें? ठीक है सुमित्रा, नेक्स्ट क्लास में हम 5 बजे संडे को मिलेंगे, ठीक है? सर कैन यू गिव मी रेस्ट 2-3 क्वेश्चन फॉर होमवर्क? यस, व्हाई नॉट। ऑल्सो जुगादिक भी ले लो, ये लो, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ले लो, प्रॉब्लम 7 को ले लो। एक सेकंड, मुझे एक बार देखा। अरे बहुत सारे होमवर्क है यार, कितना करोगे? ये प्रॉब्लम होमवर्क है, प्रॉब्लम 7। अरे ये मैं अपलोड कर दूंगा ये स्लाइड, इसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, डू योरसेल्फ प्रॉब्लम्स है, ये देखो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मैं इस नोट को दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो ये खत्म हो गया आज हमारा ये चैप्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे डू योरसेल्फ प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास नहीं है सुमित्रा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही चेक करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो मैं रात तक नोट अपलोड कर दूंगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स काफी है ना सुमित्रा, और चाहिए या फिर ये सफिशिएंट है? और भी चाहिए। ठीक है, युगादिक तुम सॉल्व करना, ठीक है? युगादिक ट्राई करना, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं ये नोट अपलोड कर दूंगा आज ही रात के टाइम पे, मैं अपलोड कर दूंगा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लैब भाग के जाना है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, यस सर। ओके, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, चलो। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ, हाँ बताओ। अरे कोई बात नहीं, गलत तो मैंने कितनी गलतियां किया है। मैंने अपने गेट एग्जाम पे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन था, मैं लेस देन इक्वल टू देख के मैथ करके आ गया था, मेरा 2 मार्क्स भी गए, मेरा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुआ। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऑलवेज गलती से सीखो, अपने आप को एनहेंस करो, अपने आप को और भी पहले से बेहतर करो। किसी के साथ कॉम्पीट मत करो, अपने आप के साथ कॉम्पीट करो। ऑलवेज ट्राई योरसेल्फ टू मेक बेटर, ठीक है? यस सर। चलो कोई बात नहीं, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर। ओके।